Hello, students, and welcome back to our YouTube channel, Humanities Adda. In this lecture, we are going to talk about महात्मा गांधी. तो इस लेक्चर में स्पेसिफिकली आपके बुक में एक बॉक्स है जिसमें महात्मा गांधी का के रोल के बारे में हमें थोड़ा बहुत जो है हमें बताया गया है कि व्हाट वाज ही डूइंग व्हेन द पार्टीशन टुक प्लेस। तो पार्टीशन के टाइम पे महात्मा गांधी का क्या रोल था उसके बारे में हम थोड़ा बहुत आज डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 15 अगस्त, एज यू ऑल नो, किस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी सेलिब्रेशन। तो महात्मा गांधी जो है हम देखेंगे कि ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ एनी सेलिब्रेशन. Instead, he was in Kolkata during that time where riots were taking place based on the communal lines. So Hindu Muslim riots जो है वहां पे हो रहे थे, and he was there to solve that issue. Disheartened, Mahatma Gandhi was very disheartened during that time because he thought that the principles of ahimsa and satyagrah जो वो इतने टाइम से प्रोपोगेट कर रहे थे वो फाइनली they have failed इन ट्रबल टाइम्स, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी अहिंसा की, सत्याग्रह की, उसी टाइम पे ये जो दो एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स है, फिलोसफी है महात्मा गांधी की, ये फेल हो जाती है. एंड दैट इज व्हाई ही वाज वेरी डिसहार्टेंड. However, we will see that his presence in Kolkata improved the situation, and then there was communal harmony. Prayer meetings attracted large crowds. Prayer meetings were, called by Mahatma Gandhi, and यहाँ पे हमें काफी ज्यादा क्राउड देखने के लिए मिलता है. And but even the communal harmony was there. It was very short lived, and then Gandhi had to resort to fast to bring peace. तो ये जो प्रेयर मीटिंग्स एंड ऑल ने थोड़ा बहुत जो कम्युनल हार्मनी है उसको एक तरीके से लाया उस टाइम पे. रायोट्स जो है वो कंट्रोल हुए थे बट दे वर वेरी शॉर्ट लिव्ड. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है गांधी का वो रहता है, वो फास्ट पे बैठ जाते हैं सो एज टू ब्रिंग पीस इन दिस रीजन. आई होप दिस मच इज क्लियर. Next, in the next month, so you will see this is the time period 15th August का time है. Then you have September. Next month में what is Gandhi doing? Again Delhi में हम देखते हैं कि there was violence, and Gandhi at this time he was very Mahatma Gandhi at this time he was very concerned about Muslims in India and the relations between India and Pakistan. He was concerned so as to in which direction the relation between India and Pakistan will go, and whether the Muslim minority in India will be allowed to stay, and what about their rights and etc. All these things. Now, unhappy with the Indian government's decision, इस time पे Indian government ने एक decision लिया, and this decision was not to honor its financial commitments to Pakistan. तो कुछ जब partition हुआ हमने देखा कि क्या process रहा है, और the assets everything got divided. तो कुछ financial commitments थे इंडिया के towards Pakistan, and after independence Indian government decided not to honor this commitment. So at this time, Gandhi was unhappy with this decision, and for then he undertook his last fast in January 1948, and this fast was basically for the to pressurize the Indian government so as to the government ऑनर इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट्स. तो जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थे उसको ऑनर करने के लिए एक तरीके से अपने फास्ट के थ्रू गांधी ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया. देन यू विल सी कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस जो है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गांधी ये कम हो जाते हैं दिल्ली वाले रीजन में, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनली अग्री करती है कि यस वी विल गिव पाकिस्तान इट्स ड्यूज. जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थे इंडिया के टुवर्ड्स पाकिस्तान, they agreed to honor that after Gandhi's fast. Now, however, you will see that इनके जो गांधी जी के जो एक्शन थे ये सभी लोगों के द्वारा नहीं पसंद किए गए, एंड हम देखते हैं कि certain sections of the society and certain people, extremist for example on the both sides, blamed him for the condition. तो हिंदू वाले साइड पे भी और मुस्लिम वाले साइड पे भी जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने गांधी को ब्लेम किया अपनी कंडीशन के लिए, एंड पर्टिकुलरली गांधी वाज डिसलाइक्ड, हिज पॉलिसीज वर डिसलाइक्ड बाय पीपल हु वांटेड इंडिया टू बिकम अ हिंदू नेशन. तो हिंदू नेशन का जो कॉन्सेप्ट है हमने एक तरीके से हमने देखा है ऑलरेडी कि किस तरीके से कुछ सेक्शन कुछ पर्टिकुलर लोग ये भी चाह रहे थे पार्टीशन के टाइम पे, उससे पहले भी इनफैक्ट, कि
जिस तरीके से पाकिस्तान एक मुस्लिम नेशन बना है, उसी तरीके से इंडिया भी एक हिंदू नेशन बन जाए. बट वी सॉ दैट इट डिड नॉट हैपन बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल. देन गांधी वॉज अक्यूज ऑफ एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम एंड पाकिस्तान. तो गांधी को इस तरीके से गांधी जी को अक्यूज किया गया, एंड ही वॉज कन्विंस्ड that any attempt to make India into a country only for Hindus would destroy इंडिया. गांधी ने ये एक तरीके से इस बात से एकदम ही वो कन्विंस थे कि अगर कोई भी एफर्ट्स ऐसा लगाया जाता है जो इंडिया को एक कंट्री ओनली फॉर हिंदूज बनाने के टुवर्ड्स कोई भी अगर मूव की जाए, तो वो अल्टीमेटली इट विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया. एंड दिस इज, यू कैन से, कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी काफी ज्यादा वैलिड है, आप देख सकते हो. तो देन असैसिनेशन ऑफ गांधी. नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट, हमने बात की जो अगेंस्ट थे आइडिया ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो बेसिकली गांधी प्रोपोगेट कर रहे थे उस टाइम पे. एंड they hence they decided to, because of the ideological conflicts and because of the efforts of Gandhi towards, जो हमने पहले देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की towards जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स थी उसके लिए उन्होंने फास्ट रखा. देन ही वाज वेरी मच यू नो प्रोपोगेटिंग द आइडिया ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. इन सारी चीजों के लिए हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट इनको पसंद नहीं करते थे. एंड देन देयर वर सेवरल अटेम्प्ट्स टू असैसिनेट, एंड इसके बाद भी गांधी जी डिड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ आर्म्ड प्रोटेक्शन. नाथुराम गोडसे ने असैसिनेट किया गांधी जी को ऑन 30th January 1948. एंड आफ्टर हिज डेथ वी विल सी दैट कम्युनल टेंशन रिड्यूस्ड, and you can see, read further in the box. So this was it about Gandhi, and in the next lecture we will move on with this chapter, move further with the next topic, that is integration of princely states. So thank you all for watching this video, and do like this video and share it with your friends if you find this useful. Thank you once again.